सभी का खून है शामिल है आपकी मिट्टी में। वंदे वंदे। मैं लाठियों का जवाब पेन से देना चाहता हूं, पेन से। आप लाठियां चलाओ, हम अपना पेन चलाएंगे। आप हम पे लाठी मारेंगे, हम अपनी पढ़ाई से जवाब देंगे। ਇਹ ਟਾਈਮ 'ਚ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਜੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀ। ये चोर है, चोर डरता है। इनको आपकी पगड़ी का डर है, इनको टोपी का डर है, इनको रंगों का डर है, इन्हें लाल और हरे का डर है, इन्हें स्टूडेंट्स का डर है, इन्हें लॉयर्स का डर है, इन्हें जजों का डर है, इन्हें किसान खेती का डर है। भाई आप डंडों से मार रहे हो, डंडों में कीले डाल के मार रहे हो, गैस बॉम्ब मार रहे हो। इट इज नॉट अ वे। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਖਤਮ। ਜਿੱਦਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ। मैंने जलियांवाला बाग अपनी आंखों से नहीं देखा था, पर मैंने जंतर मंतर पे लाठीचार्ज देखा। इन्होंने खुद कोरोना के टाइम बर्तन बजवाए हमसे, जिन्होंने डफियां बजाई थी, इन्होंने उन बच्चों पे लाठियां बजाई। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਲਾਏ। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पे राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सिर पे भी ताज होता है। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ है, मुस्लिम है। ये बस 4 साल में एक बार वोट मांगने आ रहे थे, हमें वोट दे दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, और फिर बाहर घूम रहे होते हैं। अरे मोदी जी अपना बचपन का सपना पूरा कर रहे हैं, हीरो बनने का। जहाँ भी जाते हैं वही फेस अपना लेते हैं। नेहरू में 100 कमियां रही होंगी, नेहरू में 100 कमियां रही होंगी, पर वो लोगों की आवाज से कभी नहीं डरे थे। जब तक हमारे नेता हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा हमारी परेशानियां क्या हैं। 12 साल की बच्ची का सर खोल दिया गया, वो सही था? मैंने जलियांवाला बाग अपनी आंखों से नहीं देखा था, पर मैंने जंतर मंतर पे लाठीचार्ज देखा। 10 साल के बच्चों में, 12 साल के बच्चों के हाथों में इनमें ऐसा क्या देख ले जो टेयर गैस फेंकी गई उन पे लाठीचार्ज हुआ, उनके हाथों में ऐसा क्या था? इन पे पुलवामा हमले में जो होया था उनसे एक बार नहीं फाड़ा गया किसी बाहर के मुल्क का। मगर ये क्या कर रहे हैं, आज अपने इंडिया के लोगों को ही मार रहे हैं जैसे वे आतंकवादी हो। वे अपने अधिकार के लिए खड़े थे वहाँ पर जंतर मंतर पे, कोई बम नहीं फेंक रहे थे। जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ 2020 में, तो हम में से ही बहुत लोगों ने बोला खालिस्तानी है, इनको गोली मार दो, ये तो टेररिस्ट है। लेकिन आज वो ही फार्मर्स हमारे स्टूडेंट्स को बचाने पहुंचे हैं, तो उसके लिए मेरे को शेम महसूस हो रही है और मैं उनसे अपॉलॉजी करना पड़ती हूँ। भारत माता की। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਸੂਸ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ RSS ਜਨਸੰਘਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਲਾਏ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਵੇਸਟਿੰਗ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਟਾਈਮ 'ਚ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਜੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਤਿਆ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ में ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਸੀ 2020 'ਚ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਵਾ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, 733 ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਉਦੋਂ ਲੈਸਨ ਲਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੁੱਤਰੋ ਘਰ ਜਾਓ, ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿੱਤ? ਸਿਰਫ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸਤੀਫੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮਸਟ ਬੀ ਮੇਡ 100%। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਲਓ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਖਤਮ। ਜਿੱਦਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। तो ये नीट की गल नहीं है, ये अपना प्रधान की गल नहीं है, ये नालायकों तो बाहर कढ़ना ही कढ़ना है। बट सारा सिस्टम मस्ट बी क्लेंस्ड, तां जाके गल बननी है। सिस्टम की लड़ाई नाल तो फिर पूरे देश ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ना अरे जंग जी का अगे लगो ना नहरू ने घरों पूछा सी साडे नाल आओ, गुरु गोबिंद सिंह ने पूछा सी नाल आओ, गुरु नानक जी ने पूछा सी नाल आओ, किसी भी लीडर को ले लो, भगत सिंह ने कहा सी मेरे नाल आओ, कुछ तो पूछन नहीं पूछा ना। अपनी जिम्मेवारी निभाओ यार, दुनिया थोड़े नाल आपे लगेगी। पर जे कोई दुनिया आएगी तो करेगी, फिर थोड़ा कोई इलाज नहीं। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। इन्होंने उन बच्चों पे लाठियां बजाई जिन्होंने डफलियां बजाई थी। इन्होंने खुद कोरोना के टाइम बर्तन बचवाए हमसे। कोरोना भाग जाएगा मैं यार, कितना पढ़ा लिखा बन। वहाँ चाइना लगा है वैक्सीन बनाने में, यूएस लगा है वैक्सीन बनाने में, हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानियों से डर नहीं है जितना खुद की गवर्नमेंट से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बीजेपी लेके आई है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਪਾਵਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਪਾਵਰ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਆ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, सुखदेव तेरी सोच से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये चोर है, चोर डरता है। इनको आपकी पगड़ी का डर है, इनको टोपी का डर है, इनको रंगों का डर है, इन्हें लाल और हरे का डर है, इन्हें स्टूडेंट्स का डर है, इन्हें लॉयर्स का डर है, इन्हें जजों का डर है, इन्हें किसान खेती का डर है, हर चीज़ से डरते हैं। तो ये चोर है। चोर को सबसे ज्यादा किस चीज का डर होता है? थाप का, एकता का। जिस दिन सारे इकट्ठे होके एक थाप जोर से दे दोगे, ये ऐसे भागते दिखेंगे, तुम्हें दिखेगा नहीं कि इनका लोटा कहाँ छूटा और ये कहाँ है। और इन्होंने वो काम कर दिया। ये डिवाइड एंड रूल कर रहे थे। इन्होंने पहले मुसलमानों के साथ करा, हिंदू मुसलमान, उसके बाद इन्होंने मुसलमानों के घर तोड़े। उनके 500 तोड़े तो हिंदुओं के 50,000 तोड़ दिए। आज इन लोगों ने कानूनों में बदलाव लाकर, आगे आप लोग लड़ते रहे, पीछे से ये लोग कानूनों में छेड़खानी कर 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 ये लोग समस्त चीज़ों का टेक ओवर कर रहे हैं। कहीं आपने देखा है कि उपजाऊ ज़मीन के ऊपर सड़कें बनाने की ज़रूरत है? खाएगा कहाँ से देश? इन लोगों को उन चीज़ों की प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये आज भी आप लोग विदेशी आक्रांताओं से ही लड़ रहे हो। ये विदेशी ही है जो आपको तोड़ रहे हैं, और उनको ये बहुत थोड़े से चंद है। आज ये जो सब इकट्ठा हो गया जो, और सिर्फ यहाँ नहीं बेटा, हम रोज़ देख रहे हैं देश के कोने कोने में, आसाम में, सिक्किम में, महाराष्ट्र में, दिल्ली तो आप देख ही रहे, राजधानी है दिल्ली। और जब दिल हिल जाता है ना, अब आप देखेंगे कि बदलाव कैसे आता है। जो किसी की आंखों में वो विश्वास नहीं है, वो विश्वास कैसे बनता है, अब आप लोग वो देखेंगे। आप लॉयर हो, फिर भी आप प्रोटेस्ट में हो, क्या लॉ से ये उम्मीद की जा सकती है या लीगल तरीके से इस केस को लड़ा जा सकता है, या फिर लगता है कि सिस्टम का इतना तकड़ा प्रेशर है कि लॉ भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सबसे पहले कॉकरोच शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया था? हमारे नए बच्चों के लिए, यंग लॉयर्स के लिए। उनका ये था कि नए बच्चों के पास, जिनके पास काम नहीं होता है, वो लोग यहाँ के कॉकरोचेस की तरह भीड़ लगाते हैं। उन लोगों ने समस्त सिस्टम को हाथ में, चंद लोगों ने ऐसे काबू में कर रखा है कि नए बच्चे, उनके पास काम नहीं है, दिक्कत नहीं है, उन्हें ये देखना चाहिए था कि किस तरह से उस सिस्टम को खोलें।
बहुत सी चीज़ें हैं, कमीशन है, नए केसेस हैं जो नए बच्चों को दिए जाते हैं, उनको उतना खर्चा दिया जा सकता है। जिस वक्त के ये जो जज और ज़्यादा, क्योंकि मैं 30 साल हो गया है, मैं सिस्टम से हूँ, मुझे सबके जड़ तक का मालूम है। तानाशाही बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद। मेल पुलिस वाले को अलाउड नहीं है लड़कियों का हाथ लगाना, और वीडियोस में वो कपड़े फाड़ रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, बिल्कुल, और उनके एक्शन और गालियां और एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं मैं कोस रहा हूँ, पहले उसको खुद डंडे खाए और फिर कोसे अपने आप को। बैच उतार के बच्चों के ऊपर हाथ उठाया गया है, गर्मी लग रही है इसलिए बैच उतार दिया। भाई मैं माइक उतार देती हूँ, मेरी गर्मी खत्म हो जाएगी। सॉरी। पहली बार ऊपर से कंगना रनौत ने क्या बोला, मुझे पुलिस वालों में गर्व है कि उन्होंने बच्चों पे लाठियां चलाई। किस बात का गर्व है उन्हें? कभी उनकी मूवियां नहीं चलती। एजेंडा सिर्फ इतना सा है कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए, इससे बड़ा कोई एजेंडा नहीं है। वेदर इट सीजेपी, कांग्रेस, आप, कोई भी पार्टी है, कोई भी अपना प्रोपेगेंडा लेके आ रही है, सिर्फ बहुत ही सिंपल एजेंडा है कि स्टूडेंट्स की जो मांग है वो पूरी कर दी जाए, और इसमें हम क्लियर हैं। एक तरीका होता है लाठी चार्ज भी करते हो तो, जिस तरीके से लाठी चार्ज प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया गया है, इट इज़ नॉट अ वे। भाई आप डंडों से मार रहे हो, डंडों में कीले डाल के मार रहे हो, गैस बॉम्ब मार रहे हो। गैस बॉम्ब भी ऐसे कि एक्सपायर्ड है। एक्सपायर्ड गैस बॉम्ब के बारे में सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे केमिकल्स बनते हैं उनमें जो वर्ल्ड वॉर 1 के समय केमिकल वेपन्स की तरह यूज हुए थे। वन ऑफ देम इज साइनाइड। साइनाइड के बारे में आपको पता होगा कितना फास्ट पॉइजन। बिल्कुल बिल्कुल। और इन केमिकल्स का यूज वॉर तक में बैन है। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਲਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। पुलिस की बीट से लेके 17-16 सेक्टर के चौक तक सुनाई देना चाहिए। मैं नारों से ही शुरुआत करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिन्ने बच्चा दिल्ली इकट्ठा है ਲੱਖਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸੌਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ 7-10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬੈਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। SIR ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, EVM ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पे राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पे राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सिर पे भी ताज होता है। ये बिल्कुल वैलिड प्रोटेस्ट है, और मेरे ख्याल से आज एक हिंदुस्तान के एक इंसान, और ख़ास तौर पे हर एक माँ के मन में ये नाराज़गी है, गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने नीट के पेपर, ये सिर्फ पेपर नहीं, एजुकेशन के ऊपर एक इस तरह का कुठाराघात है। ये लोग नहीं चाहते कि देश में पढ़े लिखे बच्चे आ गए हैं, इनको स्लेव चाहिए। तो इसलिए इन लोगों ने जो ये गदर मचा दिया, और इन्हें लगता है कि इनके हाथ में जब से सत्ता आई है तो इनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और ये कुछ भी कर सकते हैं।
तो उसी के तहत इन लोगों का ये जो दिमाग के अंदर चढ़ गई है पावर, उसके तहत इन्होंने नन्हे नन्हे बच्चे जिनका कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, जो अपने हकों के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन पॉलिसीज़ के ऊपर बात करने के लिए वहाँ गए हैं, जिसमें 17 से 21 बच्चों ने आत्महत्या भी किया है। और पुराने वक्तों में यदि आप देखें तो सरकारी रिज़ाइन कर दिया करती है। इन लोगों के पास ऐसी क्या चीज़ है, क्या वजह है कि ये रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं? क्यों धर्मेंद्र प्रधान को इन लोगों ने मुद्दा और इशू बना के रखा हुआ है? क्यों उसे बचाया और छुपाया जा रहा है? क्या बच्चियों की ज़िंदगी उससे कम है? क्या कर रहे हैं? तो मैं बिल्कुल, मैं क्या, देश का एक एक इंसान आज इस चीज़ के साथ खड़ा है और इन लोगों ने सोया हुआ सांप छेड़ दिया है। अब ये सत्ता परिवर्तन कोई नहीं रोक सकता।